for this particular session, we have three change makers. And in this session, we will again repeating what Dr. Datta said. We will get to listen to how the change makers have been able to inspire, how they have been able to motivate changes at the community level. Many times we say we can take a horse to the water, but it's very difficult to make it drink. It's something like that. As scientists, you create technologies, and of course, there are a few people who adopt that. But then there is this group who not only adopt the technologies, but also are able to in, uh, induce or motivate or inspire a large number of people to use these technologies for the larger benefit of the community. So the change makers are a very, very important uh, entity in this ecosystem, if we can call it that. And also we would like to hear from you. आप लोगों से भी हमें ये भी जानना है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे आपको हेल्प किया है. And most importantly, what you need to tell us is how you have been able to motivate the community, and also maybe highlight some of the shortcomings, or we heard some of it from the community groups, but we would also like to hear from you, maybe supplement, reiterate what they said. What is the further help that you will require from the government, and also what role science and technology should play for self-sufficiency or Atmanirbharta at the local level. So this is the focus of this particular session. So and for this we have three change makers or change leaders, as we call you, associated with us. Mr. Gopal from Uttarakhand, Dr. Velbiri, whom we heard some time back, and Ms. Titu Yoka, who is the president of the Action Aid Society. So these are the three whom we will listen to in this session. We will start with Mr. Gopal. Gopal ji, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं? अच्छा, ओके, आप दिख रहे हैं. ओके. गोपाल सिंह जी के बारे में आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. सो गोपाल सिंह जी बिलोंग्स टू. हाँ, नमस्कार गोपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ. जब मैं आपको आपका टर्न आएगा तब आप बोलिएगा, है ना. अभी आपको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. So Gopal ji belongs to the tribal community, and in the past he used to run a very small tea shop. एक चाय की दुकान चलाते थे आप. And ये आपकी जो financial needs है, ये आपका fulfill नहीं हो रहा था. And आपने हिस्को को अप्रोच किया आपको सपोर्ट करने के लिए, बेसिकली आपकी इनकम लेवल्स इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए. एंड हिज जर्नी स्टार्टेड विद वेरियस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग. आपने हिस्को से ट्रेनिंग लिए ऑन बी कीपिंग, इजंट इट, मधुमक्खियों की, on keeping bees. You did your training program, and you started processing local producers and selling it to the center, which was called Mera Point. And by using his local producers network, that became a common facility for the others. And he got involved with grading, processing, and branding. And he, and along with his wife, went on to raise the revenue that he was earning. And this became very popular in the region, and many governments as well as private organizations visited, and lots of others benefited from this. And slowly this became a tourist spot also, with many tourists arriving there to buy this local produce. And he has also developed an orchard for where he keeps these bee boxes. So this is an amazing story. This is an amazing story from being a tea shop, small tea shop owner, to being an learning beekeeping, and then being an entrepreneur. तो गोपाल सिंह जी, आप बताइए, आप अपना माइक ऑन कर दीजिए. आप बताइए कैसा रहा आपका ये जर्नी. आपने जो चाय की दुकान से शुरू किया, और आप आज बहुत लोगों को, इसमें आप लिखा है कि 110 करीब फार्मर्स को आप हेल्प कर रहे हैं, उनको बेटर प्राइसेस मिलने के लिए. ये जर्नी संक्षिप्त में बताइए. सर जी,
पहले मैं थोड़ा सा ये टी स्टॉल तो चला ही रहा था, लेकिन क्या था कि मैं अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। खाली एक टी स्टॉल पे ही रुक गया था। लेकिन सर मुझे जब से हेल्थ की सपोर्ट मिली, टेक्नोलॉजी की सपोर्ट मिली, मुझे सर लगा कि मैं अब आगे जाके कुछ कर पाऊंगा। आपको क्योंकि हिस्को के जितनी बारे में कैसे पता चला? हिस्को के बारे में कैसे पता चला? ये लोकल गांव में थोड़ा सा इनका प्रोजेक्ट चल रहा था, रिखाड़ गांव है। तो वहां पर हिमानी पुरोहित नाम से दीदी है, तो उनका नंबर मिला सर मुझे सबसे पहले कि मैंने बोला दीदी को, मैंने कहा दीदी आप कुछ मेरी हेल्प करोगे? उन्होंने कहा कि कैसे हेल्प करूंगा? मैंने कहा दीदी आप जाते आते समय मुझे मिलते हो, लेकिन मैं अपने अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। बोला आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं चला तो टी स्टोर रहा हूँ, लेकिन लोकल प्रोडक्ट भी मेरे पास है। मैं डिश का काम करता था सर पहले, थोड़ा इसके टी स्टोर के साथ में डिश का काम, एंटीना उंटीना फिट करता था। तो सर मैं गांव में जाता रहता था, कि तब देखा मैंने कि गांव में तो हमारे बहुत सारी चीजें हैं। हमारी बहुत सारी महिलाएं आज भी आयुर्वेद पे भी काम करती है, मधुमक्खी पालन पे भी काम करती है, मुर्गा पालन पालन पे भी काम करते हैं। लेकिन सर क्या हुआ कि उनके पास कोई आय का साधन है ही उसके बावजूद भी नहीं था, क्योंकि हम बाहर तो भेज नहीं सकते थे। हमें तो पता नहीं जितना गांव में लग रहा, या आपस में खा लेते थे या वेस्ट कर देते थे। तो मैंने मैंने इसको अपना एक प्रूफ बनाया। मैंने कहा मैं अगर हैज को यहाँ काम कर रही है, मैं उनको पूछता हूँ कि आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हो, आप क्या क्या करवा रहे हो? तो उन्होंने मॉडलेट करना था। फिर ने कहा कि गोपाल हम हर चीज करके देंगे अगर आप हमारे साथ तैयार होते हो। मैंने कहा कि हमारा तो ये इस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। मैं सर थोड़ा सा बुरांश का जूस बेचता था। बुरांश यहाँ पर लोकल फूल होता है, उसको बेच रहा था, लेकिन एक कंटेनर में रख के बेच रहा था कि लोगों को गिलास में पिला के देखो जी हमारे नेचुरलिटी यहाँ पर बहुत अच्छा है। और मैं चाय में भी उसको यूज कर रहा था, सारी जगह से उसको ही हाईलाइट कर रहा था कि ताकि ये लोग इन लोगों को कैसा अनुभव लगता है हमारी इस चीज से। सर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। लेकिन क्या हुआ, मुझे उसके बारे में जो टेक बनाने की टेक्नोलॉजी थी, मुझे कुछ सिखा नहीं रहा था, किसी ने सीख नहीं रहा, कहीं से मुझे प्रूफ करना था कि मैंने सीखा कहाँ से। तो वो मुझे पावर हैस्को के माध्यम से उन्होंने मुझे टेक्नोलॉजी दी, सिखाया, अचार बनाना सिखाया, जेएम जूस सब कुछ सर उन्होंने ने जैसे भी मतलब जो भी उनसे हो सकता था पूरी हेल्प की। सर मेरे पास तो मकान भी उसके लायक एक आउटलेट भी नहीं थी, और इस तरीके का कोई एक प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं थी कि कैसे मैं सिखा पाऊँ। तो उनको भी लगा, दीदी उनको भी लगा कि गोपाल तू कर सकता है बेटा। तो मैंने अपनी फैमिली को, जबकि मैं सर बाहर जा सकता था 10-15 हजार की जॉब में शेला कोई में या अपने क्षेत्र में कर सकता था, आईटीआई करी हुई थी। लेकिन सर मैंने सोचा मुझे अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है, किसी भी रूप में मुझे करना है, कोई भी विभाग मुझे सपोर्ट करे, मैं उनके साथ जुड़ना चाहता हूँ। सर सबसे पहले मैं हैस्को के साथ जुड़ा। फिर जो भी हमारे यहाँ ऐसे जितने किसी चीज का भी हो, सबकी मार्केटिंग करना मैंने शुरू किया कि मैं आपके प्रोडक्ट बेचूंगा, मुझे चाहे कैसे सेल करनी पड़े। तो इस तरीके से, और मधुमक्खी का सर मेरे लिए बहुत बड़ा लक्ष्य रहा। मैंने देखा कि मधुमक्खी गांव में मर जाती थी जब हम निकालते थे। सब हम अकल तो है नहीं उस टाइम निकालने की, कैसे हम तो नंगे होके कपड़े उतार के रात को आप पूछोगे भी गांव से तो आप कैसे निकालते थे, तो वो पूरा मार देते थे मधुमक्खियों को। तो मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रखी थी। मैंने कहा हमें बचाना पड़ेगा इनको, नहीं तो हमारी ये इंडिका खत्म हो जाएगी। सर हो भी रहती, क्योंकि कुछ पक्के मकानों से खत्म हो रही है। पक्के मकान पहले पुरानों के घर में उसमें टेम्परेचर रहता था, और फिर जो नए मकान बने हुए हैं सर उसमें टेम्परेचर खत्म हो जाए, तो उनके जो रूम बने हुए थे वो सारे खत्म हो रहे थे। मैंने कहा दीदी इस पे कैसे काम करें गोपाल, तू कुछ कर। तो सर मैं उन्होंने कहा मैंने 500 रुपये केजी में आपका खाली लूंगा, लेकिन आप ही निकालोगे, आप नहीं निकालोगे, आप मुझे निकाल के दो, क्योंकि आप उनको पूरी खत्म करके दो। तो उस तरीके से मैंने उनके साथ काम किया। मैं एक हिस्सा तो मधुमक्खियों के लिए छोड़ देता था, एक हिस्सा, अब जो एक हिस्सा मुझे मिलता है उसमें मैं आधा उनको दे देता हूँ, जिनके यहाँ से निकालता हूँ, आधा सर मैं अपने लिए रख देता हूँ। अगर कोई बेचना चाहता है तो उनसे मैं 500 रुपये किलो के हिसाब से सर ले लेता हूँ इंडिका का शेयर। यहाँ पे मेरे मुझे उसकी मार्केट 700 रुपये किलो सर, मेरा मार्केट बन रही है, उसमें मैं मार्केटिंग कर लेता हूँ, 700 रुपये मेरा आराम से बिक जाता है, जबकि मेरे पास पूरा भी नहीं कर पाता हूँ। आज तो फिर टनों के हिसाब से सर मैं इसको कर पा रहा हूँ। इसमें मधुमक्खी को भी सर बचाना, लोगों को गाइड किया, उनको वहीं पर गांव के लड़कों को नहीं, आप सिखाया एक कि एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए। आपने बताया इसमें जैसे इसको में आपको अलग अलग चीजें सिखाया था, मधुमक्खी का पालन करना, ये अचार बनाना, लेकिन आपने ये मधुमक्खी का क्यों स्पेसिफिकली चूज किया? क्योंकि ये तो कांटे भी है, आपको तो बहुत काटा भी होगा। सर काटती है, लेकिन क्या हुआ सर, ये हमारे समाज से हट जाएगी, मुझे इसको बचाना है। मुझे अगर इंडिका सारी जगह से खत्म हो जाएगी
तो सर कहीं न कहीं तो नुकसान है, फसलों के लिए भी नुकसान है। इंडिका का शहद सबसे बेहतरीन शहद मानते हैं सर, जब कभी साँप वगैरह भी काट देते हैं, तो काठी का एक शहद रखते हैं हमारे मम्मी-पापा, जो कहते हैं कि अगर इसका विष लग जाए तो वो भी उतार देता है। मैंने कहा तो हम इसको खो क्यों रहे हैं? सर इसी वजह से मैंने इसके ऊपर फ़ोकस किया, कि मुझे इसको बचाना ही बचाना है, कि आने वाली जनरेशन है हमारी वो देख भी नहीं पाएगी। क्योंकि सारे सबने सब पलायन कर चुके हैं, घर में जो है बूढ़े-बूढ़े लोग ही रह गए हैं, बाकी सब रोज़गार के लिए दिल्ली, बाहर सारे शहरों में चले गए हैं। इसी वजह से गए हैं कि उनके पास रोज़गार नहीं सर। सबसे मेन यहाँ पढ़ाई-लिखाई का जो हमारे गवर्नमेंट के लिए भी कहता हूँ मैं, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या होगी। जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, उसको दोबारा से रिपीट करने होंगे सर, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा तो वही लोग ले पाएँगे जो शहरों में रहते हैं। यहाँ पर तो अंग्रेजी स्कूल बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर उसमें हम इंग्लिश मीडियम कर दें इस प्राइमरी विद्यालयों को, तो शायद हो सके सर पलायन का एक माध्यम हिस्सा बन सके और रुक जाएँ। क्योंकि जिस शिक्षा के लिए हमें देहरादून, दिल्ली या बड़े-बड़े शहरों में भागना पड़ता है, सर अब वापस गाँव में आ जाएँगे। मेन शिक्षा का ये है, मैंने अपने बच्चों को मैं अपने मेरी मिसेज़ भी बात करती है कि हमारे पास यहाँ स्कूल है नहीं, तो आपका स्कूल कहीं है नहीं, बच्चे रह जाएँगे। तो मैं कहता हूँ कि कुछ समय लगेगा, 4-5 साल और लग जाएँगे, मैं आपको देहरादून या कहीं शिफ्ट कर दूँगा अगर स्कूल का कहीं बने ही ना। सर इस तरीके की समस्या भी हमारे लिए पलायन के लिए है। लेकिन सर जोशी सर हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र के लिए कि इन्होंने स्कूल का भी सोच रखा, ये रोज़गार का भी सोच रखा और सर एक चीज़ और सबसे मेन बात है मार्केटिंग। मार्केटिंग पे हम अटक जाते हैं। मार्केटिंग पे ऐसे अटक जाते हैं, जब कभी हमारे पास कोई बड़ी सी फसल आती है, कंपनी जो नहीं रूरल एरिया है सर, पहाड़ी एरिया कहाँ से पहुँचा देगा? उतनी दूर से रोड तक लाने में भी सर बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। घोड़े खच्चरें कम हो गई हैं क्योंकि ज़्यादा परदादा चल पाते थे, अब के नए उसमें बहुत सारी कमी आ गई है क्योंकि थोड़े बहुत पढ़े-लिखे हो गए हैं, उस तरीके से वो बाहर जाना पसंद करते हैं। सर लेकिन जब से ये कोरोना आया, कोरोना के बाद से सर ये हुआ कि लोगों ने वापस रिपोर्ट आना शुरू करा। 1 महीने के लिए उन्होंने आना शुरू किया और मेरी डिशें भी खूब बिकी। सर मैं डिश का काम करता था लेकिन तो लगा लोगों को कि हमें अब घर में केबिल लगवाना चाहिए। तो जब वो वापस आए तो केबिल लगवाए, लेकिन बाद में क्या हुआ जैसे कोरोना काल खत्म हुआ, वापस भागना शुरू हुए कि गोपाल यहाँ रोज़ वो आपस की लड़ाई क्योंकि जो बाहर रह रह चुकी थी महिलाएँ वो घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। सर हमें जो यहाँ पर रेगुलर बची हुई है, जनरेशन हमारी बची है, उन्हीं के साथ हमें काम इतने अच्छे से करना होगा, इतना उनको आगे बढ़ाना होगा ताकि जो नीचे जा चुके हैं वो वापस आने के लिए उनका मन बने। जैसे सर जोशी सर कर रहे हैं, हर चीज़ में, पढ़ाई में, लिखाई में, रोज़गार में, सारी चीज़ों में। एक मतलब गाँव को इतना सक्सेसफुल कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। ये महिला जो अभी आपने आपके सामने कुछ चर्चा में आई थी महिलाएँ, ये कभी आपस में बोल ही नहीं सकती थी, बात भी नहीं कर सकती थी। आज ये रोज़गार के लिए आप लोगों के सामने पेश हो रही है कि हमें ये रोज़गार भी अच्छा लगा, ये रोज़गार भी सर उन्हीं की देन है, ये है सुखी और आपकी देन है सर, कि इस माध्यम से हम कर पाएँ। और मैं तो ख़ैर हूँ ही एक उदाहरण, मैं तो सबके लिए मैं गोपाल जी, गाँव-गाँव आप एक एक चीज़ बताइए, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो आपका जो गाँव है, ये तो अपने आप ही सेल्फ सफिशिएंट बन गया, लोगों को रोज़गार भी मिल रही है, वो पढ़ाई का भी वो इंक्रीज़ हुआ है। तो आप ये बताइए, लोग अपने आप ही जुड़े या आपने कैसे लोगों को मोटिवेट किया? आपने कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस किया आपके साथ ये देखिए, जुड़ने के लिए? जब सर मैं आपको बताता हूँ, जब मैं एक सक्सेसफुल इंसान बना, लोगों फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, उन्होंने मुझे प्रचार में सब लोगों को पता लगा कि गोपाल एक सक्सेसफुल इंसान बन रहा, कि इसके इतने सारे लोग इससे जुड़ने पे चाह रहे हैं, तो सर मुझे जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, अपने आप ही कि लोग काफ़ी जुड़ लोग गए। मेरे तरफ आ गए सर। नहीं तो मुझे लोगों के घर में जाना पड़ता, एक-एक को समझाना पड़ता, मेरी वैल्यू नहीं थी सर। आप थोड़ा-सा मेरा पॉइंट के बारे में बताइए। हाँ सर, मैं मेरा पॉइंट के बारे में बताऊँ, जब बाहर जैसे पढ़ाई की मैंने आईटीआई की, तो लोगों के घर में पोताई भी की, फिर उसके साथ मैंने पढ़ाई भी की। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने परिवार को कुछ मैं अगर मैं बाहर चले जाऊँगा, तो मेरा परिवार यहाँ पर जिएगा कैसे? उनके पास तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत ज़मीन है, इससे कैसे कर लेंगे मेरे मम्मी-पापा, मेरे भाई-भतीजे बहुत सारे हैं, कैसे करेंगे ये लोग? तो सर मैंने उसका टीन का एक जो मेरा पॉइंट है वो टीन टीन का बना रखा था, लेंटर भले ही दे रखा, लेकिन टीन का ऊपर से खड़ा कर रखा था। तो लोगों ने उस टाइम बेइज़्ज़ती भी की कि इसने रामला वाला या कुछ ऐसा मकान या झोपड़पट्टी वाला ये क्या बना रहा है, ये उड़ जाएगा इसका। लेकिन लोगों को पता नहीं था सर कि ये बड़ा रूप ले लेगा एक दिन आने में। यही मेरा सबसे मेन संघर्ष रहा कि अगर मैं बाहर चले जाऊँगा, मेरे परिवार कैसे जिएगा? मैं तो 10-15 हज़ार रुपए नौकरी करके वहाँ रह लूँगा, लेकिन मेरे फैमिली के लिए कोई नहीं होगा फिर बाद में। इसी को मैंने कहा कोई जो घर पे रुकेगा वो कम से कम काम तो कर लेगा थोड़ा बहुत। यही सर मेरा मेन लक्ष्य रहा था।
तो मेरा पॉइंट अभी कितना बड़ा है अभी, क्योंकि अब कब शुरू हुआ और अब कितना बड़ा हो गया है? सर 2011 में मैंने ओपनिंग की। दिक्कतें सर मेरे साथ बहुत आई। 2011 में ओपनिंग की तो टूरिस्ट भी काफी आ रहा था 2011 में। 2013 आते हुए केदारनाथ आपदा आई सर। उसके बाद टूरिस्ट फिर आना बंद हो गया। उसमें फिर बहुत यहाँ पर और दिक्कतें शुरू हो गई। ये टूरिस्ट बंद हो गया, थोड़े बहुत आते थे कस्टमर, जबकि मैंने 5, ये लगा लो आधा लीटर दूध मैं पूरे दिन भर बेचता था। आज सर 10 लीटर दूध मेरा इसमें चाय में भी लग जाता है। लोकल चाय के रूप में जैसे बनाता हूँ। किसी को बोलता हूँ सर जिंजर वाली चाय पी लो, किसी को बोलता हूँ बुराश वाली चाय पी लो। हर तरीके की चाय में हर तरीके का वो अपने लोकल ही चीजें डाल के अपनी लोकल चीजों को प्रमोट करना है मेरा मेन, कि लोग मंगाए। यही सर आगे बढ़ाने का मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो के माध्यम से। मैं थोड़ा अपना दिखा देता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो। थोड़ा सा मैं करता हूँ सर वीडियो। कितना लंबा वीडियो है? तो वीडियो में वैसे ही चलता जाता हूँ। मैं थोड़ा सा, हमने जो मेरी प्रोसेसिंग यूनिट है वो मेरे अच्छा। अंदर है, लेकिन मेरा काम बाहर है। हाँ गोपाल जी दिखाइए। ये अच्छा सर ये है देखो। आपका। ओके ओके। और जो सर मेरी आउटलेट है जिसमें मैं आपको सारी चीजें अपनी दिखाऊंगा। ये सारी चीजें मेरे प्रोडक्ट है, अपने सारे लोकल प्रोडक्ट है सर, जो मैं हम जो गांव से हम तैयार करवा के लाते हैं। ये सब दालें हैं, यहाँ की दालें वगैरह। ये सर सारी चीजें। ओके, ये सारा ये लोकल प्रोड्यूस है। जो भी सारी जगह यहाँ सर बन रहे हैं गांव में, जितने भी गांव हैं सब यहाँ पर पहुंचा देते हैं। एसडीजी के माध्यम से हो या किसी समूह के माध्यम से हो, मैं सबका अपने पास रख लेता हूँ। मुझे तो सबको बढ़ावा देना है ताकि हमारा ये और बढ़े किसी न किसी रूप में सर, हमारे पास लोग आए। ये प्रोसेसिंग यूनिट है सर। जोशी जी, सॉरी गोपाल सिंह जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद। सर। अभी हमारे पास टाइम की कमी है, अगर टाइम मिला तो हम वापस आपके पास आएंगे। अभी फिलहाल आपसे हम चल के हम जा रहे हैं चेन्नई। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम वापस आते हैं आपके पास अगर समय है तो। बहुत बहुत सर जी अच्छा लगा, आपने काफी काम किया है यहाँ एक पर। आपको हाँ जी। बताता हूँ हाँ सर जी, हाँ एक बताइए। बार आप जरूर आइए, विजिट कीजिए, हमें बढ़ावा दीजिए। उत्तराखंड को सर आपने आगे ले जाना है, आपका आशीर्वाद रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बाकी तो सर जरूर आप तो। मौका मिलेगा तो हम सब लोग आएंगे। तो उंगली पत्ती கொஞ்சம் சொல்லுங்க। வணக்கம். என் பேர் அகிலா. நான் பனித்திட்டு மீனவ கிராமத்தை சேர்ந்த பெண். பாண்டிச்சேரி மாநிலம். எங்க கிராமத்துல கடல் தொழில். சொல்லுங்க சொல்லுங்க। I think somebody needs to turn off their mic. Yeah, அகிலா சொல்லுங்க। என் பேர் அகிலா. நான் பனித்திட்டு கிராமத்தை சேர்ந்த மீனவ பெண். புதுச்சேரி மாநிலம். எங்க கிராமத்துல மீன்பிடி தொழில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. எங்க கிராமத்துல 2005ஆம் வருடத்துக்கு பிறகு, சுனாமிக்கு பிறகு மாசா சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது. அது மூலியமாக எங்க கிராம மீனவர்களுக்கு தகவல் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. 2007ல கிராம அறிவி பணியாளராக பணிபுரிந்தேன். அது மூலியமாக இன்காய்ஸ் தகவல்கள் எங்க கிராம மக்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஆடியோ மெசேஜ், டெக்ஸ்ட் மெசேஜ், ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் வைத்திருப்பவர்களுக்கு FFMA என்ற ஒரு ஆப், அதையும் டவுன்லோட் செய்து கொடுத்து எங்க மீனவர்களுக்கு நாங்க தகவல் கொடுத்து கொண்டிருந்தோம். அது மூலியம் இல்லாமல் காற்றின் வேகம், அலையின் உயரம், மீன் கிடைக்கிற தகவல்கள், GPS பாயிண்ட், SOS போன்ற தகவலும் எங்க கிராம மீனவர்களுக்கு தகவல் பரிமாற்றம் செய்து கொடுத்து கொண்டிருந்தோம். எங்க கிராமத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 250க்கு மேற்பட்ட பைபர் போட்டுகள் இருக்கிறது. அதுல அகிலா வந்து ஒரு கொஞ்சம் 500க்கும் கொஞ்சம் நில்லுங்க, மேற்பட்ட. நீங்க 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 சொன்னதை வந்து நான் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறேன். Okay. So what Akila said so far is that she belongs to a village, Panitita village. That is what I understood in Pondicherry, and she belongs to the fishing community, and the village where she resides, the majority of them are fisher folks who and after the 2005 tsunami, I think she said 2005, Priyanka or Dr. Velvi, if you're there, you can correct me if I say anything wrong. Yeah, 2005, after the tsunami,
in MS Swaminathan Research Foundation and the INCOIs, they have been helping this community in providing timely information related to many, basically she recounted many environmental factors such as wind speed, and even the availability of fishes. So a lot of information which is helping them to net the fishes, if that is the right word, from the sea. I think this is what she has said so far. So basically what we are hearing is that the role of information, how information has played a very, very important role in helping the local community in augmenting their, of course, obviously, evidently income, but also improving their Safety. the community, safety also, and most importantly, the way of living. They do fishing, and so these information are critical to them. So அகிலா, இது சுனாமி வர்றதுக்கு முன்னால இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இல்லையா உங்களுக்கு? அப்ப இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படலையா? இந்த சுனாமி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் தேவைப்படுது. சொல்லுங்க. சுனாமிக்கு முன்னாடின்னு பாத்தீங்கன்னா சார், எங்களுக்கு வந்து டிபார்ட்மெண்ட் மூலியமாவோ இல்ல ரேடியோ மூலியமாவோ எங்களுக்கு அலை உயரம், இந்த புயல் வருது, மழை வருது அப்படிதான் எங்களுக்கு தகவல் வந்துட்டு இருந்தது. தண்டோரா போட்டு அடிப்பாங்க ஊர் மக்களுக்கு. அப்ப வந்து அந்த அளவுக்கு விழிப்புணர்வு கிடையாது மக்களுக்கு. 2005 சுனாமிக்கு பிறகு எல்லா ஸ்டேட், அந்த இந்திய பெருங்கடல் மூலியமா இந்த சுனாமி வந்த பிறகு கடலோர கிராமத்துல இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அது மூலியமா 2005ல எங்க கிராமத்துக்கு மாசா சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஒரு நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது. அது மூலியமா எங்களுக்கு தகவல் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. தகவல் கொடுக்க கொள்ள எங்க மீனவர்கள் ஆகிய நாங்க மீனவர் கிராமம் சொல்ல கொள்ள எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு விழிப்புணர்வு கிடையாது. அந்த நேரத்துல எங்களுக்கு இந்த அறிவு மையத்தின் மூலியமா எங்களுக்கு தகவல் கொடுத்தாங்க. காற்றின் வேகம் இருக்கு, அலை உயரம் இருக்கு. மேடம், உங்களுக்கு தகவல் மட்டும் தான் கொடுத்தாங்களா இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது கத்து கொடுத்தாங்களா? புரியுது, என்ன கேக்குறீங்க? உங்களுக்கு தகவல் மட்டும் தான் கொடுத்தாங்களா இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்கில் கத்து கொடுத்தாங்களா? பயிற்சி கொடுத்தாங்க. எதுல கொடுத்தாங்க? எங்களுக்கு ஜிபிஎஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. இன்ஜினி ஒரு இன்ஜினி கடலுக்கு போகுதுன்னா, ஒரு பழுதாயிடுச்சுன்னா அதை எப்படி சரி பண்ணி கொண்டு வரணும். அது இல்லாம எங்களுக்கு கோஸ்ட் கார்டனுடைய ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க தொழிலுக்கு போறீங்க, அந்த இடத்துல ஒரு போட்டு பைபர் போர்டு ஏதோ ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு, நீங்க அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு மொபைல் மூலியமா நீங்க கோஸ்ட் கார்டை அணுகி அந்த ஒரு பாதுகாப்பை எங்களுக்கு தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்து அது மூலியமா மீனவர்களுடைய ஒரு பாதுகாப்பை எங்களுக்கு நிலைநிறுத்தி கொடுத்திருக்காங்க. மேடம் கொஞ்சம் நில்லுங்க, நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறேன். So what Akila is saying is that before the tsunami in 2005, they used to get information through the state departments, probably over radio, or even very old means like beating of the drums, and that is how they used to get information. But after the tsunami and after MS Swaminathan Research Foundation set up, if I can call it a rural information center in their village, they were given a lot of information related to whatever they require for their everyday fishing needs. But apart from that, apart from providing information, they were also provided with training, and this training are very critical. This training was on how to operate GPS, and also on some skills such as repairing boat engines in case they go faulty, and also how they can connect with coast guards in case of an emergency, mobile applications and things like that. So these things were also taught to them. So the MS Swaminathan Research Center and probably INCOIs, both of them, they played an important dual role. One is providing information and the other is training. அகிலா, நீங்க சொல்லுங்க, மேல சொல்லுங்க. இந்த இன்காய்ஸ் தகவல் கிடைச்ச பிறகு மீனவர்கள் ஒரு நாளைக்கு 2 முறை தகவல் வருது. அந்த தகவலை பார்த்துக்கிட்டு இந்த 2 மணிக்கு 1 மணிக்கு அந்த மாதிரி தொழில் செய்ய கொள்ள அவங்க அவங்க தயார்படுத்திக்கிறாங்க. நம்ம 2 மணிக்கு போகல, காத்தோட வேகம் எப்படி இருக்கு, அலையோட உயரம் எப்படி இருக்கு, நமக்கு டெக்ஸ்டாவும் ஆடியோவும் கொடுத்துட்றாங்க. அது மூலியமா அவங்க பார்த்துக்கிட்டு போகல அவங்க ஒரு நிலையான ஒரு திட்டமிடுறாங்க. நம்ம இந்த மாதிரி டைம்ல இந்த தொழில் செய்யலாம்,
இன்னைக்கு போட்டுக்கு போலாம், இன்னைக்கு போட் எடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து தயார்படுத்திக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி அவங்கள தயார்படுத்திக்கிட்டு அவங்க தொழிலுக்கு போகல முன்னாடி வந்த வருமானத்தை விட இப்போ ஓரளவுக்கு திட்டமான ஒரு வருமானம் வருது. அந்த வருமானம் வரக்கொள்ள அவங்களுடைய குடும்பத்தையும் ஒரு பாதுகாப்பு படுத்திக்கிறாங்க. பாதுகாப்பு மேடம் படுத்திக்கிட்டு இது ஓகே மேடம். இப்ப வந்து இது வந்து இந்த செஷன்ல வந்து நீங்க வந்து சேஞ்ச் மேக்கர்னா நீங்க இப்போ இதெல்லாம் வந்து எம்.எஸ். சுவாமிநாதன் இன்குவயர்ஸ்ல இருந்து நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க. நீங்க உங்க உங்க வில்லேஜ்ல வந்து நீங்க என்ன ஹெல்ப் பண்ணீங்க அங்க இருக்கிறவங்க உங்க கம்யூனிட்டி ஃபிஷிங் கம்யூனிட்டில இருக்கிறவங்களுக்கு? நான் நீங்க என்ன ஏதாவது பண்ணேன்னா பர்சனலா பண்ணீங்களா? நான் பண்ணிருக்கேன். நான் வந்து அந்த என்ன அது தகவலை சொல்லுங்க, அது எனக்கு சொல்லுங்க. மட்டும் இல்லாம என்னுடைய சார்ந்த சகோதரிகள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே குரூப் மீட்டிங் போடுவேன். குரூப் மீட்டிங் போட்டு இன்னைக்கு காத்து இந்த அளவுக்கு இருக்கு, அலை இப்படி இருக்கு, அதனால உங்க வீட்டுக்காரங்க எல்லாம் ஒரு தொழிலுக்கு குரூப்ல போகல. எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க? ஒரு குரூப்ல வந்து மேக்சிமம் ஒரு 25 பேரு 30 பேர் இருப்பாங்க. இது அவங்களா அது வருவாங்களா? இல்லாம அவங்களா வருவாங்களா? இந்த சென்டருக்கு வருவாங்களா? நாங்க வந்து சொல்லிடுவோம். இந்த மாதிரி நான் போகலையே சொல்லுவேன். ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி மீட்டிங் போட போறேன். நம்ம மீனவருக்கு தேவையான தகவல் நான் வந்து இப்ப உங்களுக்கு விழிப்புணர்வு கொடுக்க போறேன். நீங்க எல்லாரும் உட்கார்ந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஒரு மேடம் அவங்க 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 நேரடியா வந்து இந்த சென்டருக்கு வந்து அவங்க நேரடியா இது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கிடைக்காது. அது நீங்க கிடைக்கும் சார். நாங்க விகேசிக்கே வர வச்சு அவங்கள உட்கார வச்சு நாங்க குரூப் மீட்டிங் போடுவோம். அப்படி வந்து இல்லைன்னா இந்த பஞ்சாயத்துக்காரவங்க எல்லாம் ஒரு குரூப்பா உட்காந்து மீட்டிங் போடுவாங்க ஜென்ஸுங்களாம் அவங்கள வச்சு போடுவோம். இல்ல நம்ம ஒரு தெருவுக்கு போய் ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த தகவலை கொண்டு போய் மக்களிடையே சேர்க்கணும். அதனால நம்ம வந்து மக்களோட மக்களா இணைஞ்சு அவங்களுக்கு இந்த தகவலை நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நாங்க ஏரியாவெல்லாம் போய் இந்த தகவலை சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கு, ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் வச்சிருக்கீங்களா, இந்த அப்ளிகேஷனை ஏத்திக்கிங்க, உங்க வீட்டுக்காரங்க தொழிலுக்கு போகல இந்த இதெல்லாம் இந்த மீன் கிடைக்கிற திசை ஜிபிஎஸ் பாயிண்ட் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அவங்க தொழிலுக்கு போனாங்கன்னா அவங்களுடைய பாதுகாப்பு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க அவங்களுக்கு அந்த தகவலை கொடுப்போம். அவங்க அதை கேட்டு அவங்க வீட்டுக்காரங்களுக்கு அவங்க சொல்லுவாங்க. Okay, so what has been the role of Akila is that she has been networking and connecting with the community people and in fact disseminating this information further to larger groups. So that is the role that she has been playing. அகிலா உங்ககிட்ட லாஸ்டா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறேன். இப்போ உங்களுக்கு இப்ப வேற என்ன எதிர்பார்ப்பு இந்த இன்குவயர்ஸும் எம்.எஸ். சுவாமிநாதன் ரிசர்ச் இந்த ரூரல் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் உங்களுக்கு இதுக்கு மேல என்ன ஏதாவது எதிர்பார்ப்பு இருக்கா? இப்ப எங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2005க்கு அப்புறம் எங்க மீனவர்கள் இப்ப கொஞ்சம் நல்லா விழிப்புணர்வா இருக்காங்க. ஒரு உயிர் சேதமோ ஒரு போட்டோடைய பிரச்சனையோ எதுவுமே இல்லாத அளவுக்கு இப்ப அவங்களுடைய வளர்ச்சியை கொஞ்சம் கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டு வராங்க. எங்களுக்கு இந்த இன்காய்ஸ் தகவல் வந்து டெய்லியும் கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு. எங்களுடைய பிரச்சனையை அவங்க கேட்டுக்கிட்டு எங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க தகவல் செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க. இன்னமும் எங்களுக்கு மீனவரோட அவங்க இணைஞ்சு எங்களுக்கு தேவையான தகவல்கள் எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு உடனுக்குடன் ரிப்பீட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இருந்தாலும் வந்து மீனவருக்கு ஒன்னும் நிறைய செய்யணும். இன்னும் நிறைய செய்யணும்னா என்ன செய்யணும்? அது நீங்க கரெக்டா ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். என்ன செய்யணும்னா இப்ப எங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா செயற்கைக்கோள் டவர் பிரச்சனை கொஞ்சம் இதா இருக்கு சார். போட்டுக்கு போகல ஃபிஷர்மேன் வந்து போன் எடுத்துட்டு போக முடிய மாட்டுது. ஏன்னா 20,000 ரூபாய் போனு 30,000 போனு 5,000 போன் எல்லாம் எடுத்துட்டு போனாங்கன்னா தண்ணியில விழுந்து போகுது. அதனால அத கருத்துல கொண்டு அவங்களுடைய ஃபிஷர்மேனுக்கு ஒரு சேஃப்டிக்கு நம்ம இன்காய்ஸ் மூலியமா அந்த போன் டவர் பிரச்சனை இல்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து ஒரு போனே கொடுத்திருந்தாங்க. போன் கொடுத்து ஒரு போட்டுக்கு ஒரு மாசம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னா எங்க மக்களுக்கு ஒன்னும் கொஞ்சம் பாதுகாப்பா இருக்கும் சார். Okay, so as a parting question, what I asked her was that what further the Rural Information Center and inquiries can do for the community, and her response was that yeah, they can do more. Of course, that was a generic statement that she made. But apart from that, what she said was that one of the problems that the fisher folks face is that because mobile seems to be their primary medium of communication, and they tend to
lose the mobiles, or they are not able to communicate owing to signal issues. So if something can be done on this front, basically to how to make the communication mechanism more robust. So this has been her take on what more can be done. So அகிலா, உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நீங்க எங்க கூட இருங்க. டைம் இருந்தா திருப்பி உங்ககிட்ட வரோம். ஓகே, Thank you, sir. Okay. Thank you. So we will move on to the last change maker, who is Miss Titu Yoka, the president of the Action Aid Society in Arunachal Pradesh. So this Action Aid Society, it's basically to create a conducive platform for the young, especially women, to address their needs and build a better future. Hello. So Yoka has been working with more than 80 self-help groups, especially with its female members, and also providing small loans to them via the state rural bank. She has been receiving technical support from the CSIR NEAST branch in Itanagar, and she has also been involved in preparing mushroom pickles, spice, value-added products, millet powder, and lots of other things. She has also received the Mother Teresa Humanity Award for 2021, and also the Best Social Entrepreneur Award from EDII, I think that's the Entrepreneur Development Institute of India, Ahmedabad. So is she not able to connect? Or is there a replacement for her? Is there someone else? Dr. Chandan Tamule? She was talk with me, and she told me that fine. Yeah, I have seen in the. We are not able to connect with her. So is there a replacement? Do we have a replacement for her? At present, sir, I don't have any replacement. Actually, she talked with me and she told me that okay, I'm fine. That's So unfortunate. let's see. Never mind. Maybe you can just very briefly tell us what till she gets online. You can tell us what she's been doing. Just a minute, I will try to communicate with her. That's all right. We'll be losing time at establishing connection because she's aware. So there must be some issue at her end. You can just tell us what she has been doing as the change maker there. What has been her contributions? Yeah, actually, this lady, she is very dynamic, and she is the president of the Action Aid Society of Arunachal Pradesh, and she started this. Dr. Tamule, is it not possible to invite Madam Titu? She is available online. Very well. That day we were looking for actually, to listen to her. She's available online, but she's not able to. Yeah, I think she's trying to connect now. Yeah, she's trying. Actually, she's trying. And even if we cannot see her, if she can put her video off and can speak, because whatever the point she spoke was very important that day. What she said. Yeah. That's why. Let's see. I think she'll be able to. नहीं तो ताबू जी जहाँ है वो क्या उससे दूर है क्या जो नहीं तो whether she can come there and can speak. ताबू जी जहाँ है ना तो थोड़ा दूर में है, इतना पास भी नहीं है उनका, थोड़ा दूर में है. So what I'll suggest is that maybe Tabuji can try and get her online, since you are nearby. You can call her or something. So in the meanwhile, I think she's far away because it's a hilly terrain and she's far away. Okay, then what do we suggest, Dr. Datta? What do you suggest? Should we, maybe we can stop this session? I think what I suggest, like Dr. Mahesh, maybe we just wait for a minute. If not, we will start. I think she's here now. She's here. आप बताइए, आप प्रेसिडेंट ऑफ एक्शन एड सोसाइटी ऑफ अरुणाचल है. आप हमारे साथ जुड़ने से पहले डॉक्टर चंदन बता रहे थे कि आप काफी एंटरप्राइजिंग पर्सनालिटी है. तो आपने ऐसे चेंज मेकर आपने क्या क्या किया आपने वहां पर, ब्रीफली बताइए. अच्छा सर, हाँ जी सर, ये ब्रीफ ये में हमारे जर्नी एनजीओ से शुरू होता है. हम 2005 को शुरू किया था. हमने जब गुजरात से हमने एनजीओ डिप्लोमा परस्यू करके हम जब अरुणाचल आया तो देखा है कि पीपल आर वर्किंग इन अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड वे.
तो हमने एनजीओ फॉर्म किट करके सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर क्लब, यूथ क्लब, जो रूरल एरिया में जहाँ गवर्नमेंट का एक्सेसिबल नहीं है, गवर्नमेंट का फैसिलिटी नहीं पहुंचता है, हमने 2 years पूरा सर्वे में डाटा कलेक्ट करने में, रेपो कर बिल्डिंग करने में हमने पूरा ये लगा दे। Then we form a lots of self help group, farmer club, youth club, and then we given them a need based training. हम लोग ये रेडीमेड ये आप ये प्रोजेक्ट करो, आप ये करो, अच्छा है, we don't believe in that ready-made things. So whatever they suggest कि हमको ये जरूरत है, नीड बेस्ड ट्रेनिंग हमने किया, जैसे हम लोग एमबीएस कर रहे थे कि मशरूम ट्रेनिंग के बारे में। So मैं एज ए एंटरप्रेन्योर, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर में हमने देखा कि हम जब ट्रेनिंग दिया तो देन दे सजेस्ट कि ट्रेनिंग तो हो जाएगा एंड प्रोडक्शन आल्सो विल हैव, वी कैन मेक इट, बट सवाल ये है कि कैन यू इंश्योर आज कि हमारे प्रोडक्ट सेल हो, व्हाटएवर यू प्रोड्यूस, व्हाटएवर फार्म प्रोड्यूस वी गेट, कैन यू मार्केट इट? सो ये सवाल हमारे लिए क्वेश्चन मार्क रह गया था सर। देन वी हैड अ टेक ए चैलेंज कि हम उनका प्रोडक्ट को मार्केटिंग करेगा करके। तो सर इसलिए हमने सोचा कि हम कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, उनको प्रोडक्ट को फार्मर को ग्रुप बना दिया, फिर फार्मिंग भी सिखा दिया, टेक्नोलॉजी थोड़ा इनपुट भी दिया। देन वी रियलाइज कि फार्मर का प्रोडक्ट को हम कैसा मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने खुद फूड प्रोसेसिंग में हम ये हमारे प्रोडक्ट है। ये सर मोरिंगा टी है, मोरिंगा टी, ये देखिए ये हमारा पैकेजिंग है। अभी मेरे सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसा ताबुदुई सर का जी का ये मिसेज जो है बता रहे थे कि उनका पैकेजिंग का जरूरत है, तो बेसिक पैकेजिंग हमारे यहाँ ही हो सकता है। अगर आपको हाई टेक में जाए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ है बेसिक पैकेजिंग। मुझे नहीं लगता ये तो मेरा दिल्ली तक जाता है मेरा ये प्रोडक्ट। टीटू जी आपने है ना? टीटू जी आपने बताया, यू नो यू आर वेरी एंटरप्राइजिंग एंड इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड मेथोडिकल वे आपने 2005 आपने चीजें सीखी और आपने बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओज ये बनाए और यू हैव बीन इन्वॉल्वड इन ट्रेनिंग, इन्वॉल्वड इन मार्केटिंग एंड ऑल दैट। आप ये बताइए हमें, आपने कौन-कौन सी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से क्या-क्या मदद लिया आपने? सर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बोले तो जैसा ये मैं ये तो नहीं बोल सकता कि जैसे कि आपका नीस से हमारे दिल्ली में 2016 को शायद एक टेक्नोलॉजी एक्सपो हुआ था दिल्ली में। मैं एज ए स्पीकर, हम भी गए थे उसमें एज ए रिसोर्स पर्सन, अरुणाचल के ईटानगर की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसमें हमने कई देखा है कि इवन नॉट ये हम लोग पैकेजिंग में कैसे इम्प्रूव ला सकता है, बट हम ये तो नहीं बोल सकते कि हमने वो देखा है आप जल्दी हमको ईटानगर में ही वो अवेलेबिलिटी कर दे। तो हम उसको थोड़ा एज ए एंटरप्रेन्योर थोड़ा अलग एंगल में सोचा है कि हम क्यों ना ऐसे जब हमारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है तो हम प्लास्टिक जो बाजार में अवेलेबल है दिखने में बहुत खूबसूरत है, बट दैट इज नॉट हाइजीनिक एंड वी कैन नॉट कॉल एज ऑर्गेनिक व्हेन पैकेजिंग इज नॉट ऑर्गेनिक। सो हमने सोचा है कि हम लोग क्यों ना लोकली कुछ चीज जैसा यहाँ का लिप्स है, कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ लिप्स है, तो उसी को ही हम क्यों ना पैकेजिंग करते हैं। तो हमको ये आपसे ये मदद चाहिए, अगर आप हमसे पूछे तो हम इसलिए तामोली सर और बोरा सर से अक्सर ये बात करते हैं, क्योंकि उसमें देखा है तो दोनों ही सिर्फ है तो है स्टाफ, लेकिन जो मेन रोल एक्टिवली प्ले करता है तो दोनों है। तो उन दोनों का भी सर्टेन लिमिटेशन है, रिसोर्सेस लिमिटेशन है, टाइम लिमिटेशन है। तो हम लोग एज चेंज मेकर हम लोग आते हैं, कभी इंटरेक्शन करते हैं, तो हमको सर ये जरूरत है कि नॉट नेसेसरी कि हम बाहर से हाई टेक टेक्नोलॉजी का ही यूज प्रयोग करें। हमारे जो लोकली अबाउंडेड रिसोर्सेस है, जैसा पैकेजिंग का बात करते हैं, तो ऐसा कुछ सर्टेन लिप्स है। आजकल हमने देखा है जो लिप्स मैंने एक ये पे यूट्यूब पे देखा है कि वो सैनिटरी नैपकिन बनाते हैं, और एक कोरियन कंपनी है, वो जो लिप्स है हमारे जंगल में अवेलेबल है, तो उससे वो ऐसा पैकेजिंग करके उसका इंटरनेशनल मार्केट डिमांड है, स्ट्रो बनाते हैं, तो उससे पैकेजिंग करते हैं। तो मैं एज ए एंटरप्रेन्योर मैं ऐसा पे बिलीव करता हूँ कि नॉट नेसेसरी कि हम हाई टेक पे जाए। जैसे आपने पूछा है कौन कौन ये से ये किया, आज तक तो मैं किसी इंस्टीट्यूशन अपार्ट फ्रॉम दिस किसी से इतना मेरा वो नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर, SIRD, NRLM है, अभी SRLM है, तो उन लोग से मेरा अच्छा ताल्लुकात है, अच्छा रेपो है। तो हम जब जरूरत पड़ता है तो उसको ये, लेकिन आज तक तो ऐसा हमको प्रोजेक्ट मिला है, ऐसा सपोर्ट मिला, ऐसा तो हम बोलने के लिए सर ऐसा नहीं है। अभी हम ये कोशिश है कि जैसा टेस्टिंग लैब, हाँ ये टेस्टिंग लैब मेरे कॉलेज लोग ने भी बोला है, टेस्टिंग लैब का ईटानगर में बहुत जरूरी है, ताकि हम भी ये चाहते हैं कि हम बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवरी करें लोग हमारा कंज्यूमर को मार्केट में।
तो हम भी कुछ जानना चाहता है कि हमारे क्वालिटी में कितना हमारे प्रोडक्ट में कितना क्वालिटी है और क्या क्या बेनिफिट है। तो ऐसा तो हम एज अपना टेस्टिमोनी अपना यूज करके जानते हैं, पर मार्केट में ये बताना जरूरी है कि विथ लैब टेस्टिंग के साथ लोग बिलीव करते हैं। तो ये एक आपसे ये है रिक्वेस्ट है, एक टेस्टिंग लैब हो हमारे ईटानगर ब्रांच में। और सेकंड ये है कि सर, सेकंड ये है कि पीरियडिकली आप एक ये ऑर्गेनाइज करें, जैसा टेक्नोलॉजी एक्सपोजर, कि हम लोग अपडेट करें क्या क्या ऑप्शन हो सकता है लो कॉस्ट पैकेजिंग में वगैरह। तो ऐसा एक पीरियडिकली रखे, क्योंकि 2015-16 जब दिल्ली हमको ले गया उसके बाद तो देयर इज नो सच इवेंट्स बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन। और थर्डली जो लोकली जो पैकेजिंग हो सकता है, तो हमको आप थोड़ा सा सपोर्ट देने से दैट अरेंजमेंट, मेरा इनोवेटिव आइडिया को और यहाँ का लोकल रिसोर्सेज को यूज करके आप ऐसा अगर हमको ऐसा सेमिनार वर्कशॉप का एक स्पॉन्सर करता है, तो वी कैन ऑर्गेनाइज हियर इन ईटानगर। जो हमारे ताबुद्वी का मिसेज जो बोल रहा था कि हमको ऐसा पैकेजिंग इतना, तो उसका लेवल का तो नॉर्थ ईस्ट लेवल का तो इंडिया लेवल का तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं। इनोवेशन पूरा मेरा आइडिया कॉन्सेप्ट को ऐड करके लोकल रिसोर्सेस को यूज करके। सर ये एक आपसे गुजारिश है, ये है। और पूरा आउट ऑफ रीजन जाने के लिए, जैसा बेंगलोर में है NSFD का नाम से सर आप वाकिफ होंगे, तो उन लोगों से हमारा आपके तरफ से अगर हम खुद उनसे जाए तो दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपका तरफ से पर्पस चैनल में एज ए इंस्टीट्यूशन जाए तो और बेहतर रहेगा। तो मेरा आपसे ये ताट गुजारिश है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट को NSDC से अगर टेस्ट कराना हो या सर्टिफाई कराना हो, आपके तरफ से थोड़ा टाइम टेकिंग नहीं करके थोड़ा इजीली में हेजल फ्री में हो जाए। तो ये है मेरा ताट रिक्वेस्ट सर। Okay, so we और are almost, और सर वन मोर, यस सर वन मोर, जैसा आप लोग अभी मशरूम और वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, ये मशरूम को मैं ऐसा बिलीव नहीं करता हूँ कि ये जैसा ओस्तार सिखा रहा है, ये हमारे बरुआ सर हम दोनों आउट ऑफ ऑफिस भी करते हैं। जैसा हमारे यहाँ में एक लोकल एक्सोटिक है गेनोड्रोमा आप अभी देख रहा होगा मेरा बैकग्राउंड को, मैं एक काउडंग का पूरा, ये मेरा फार्म हाउस है, मेरा काउडंग का घर है, पूरा वॉल भी काउडंग से मुरा। और मैं काउडंग का आपको मैंने काउडंग का ईटा भी बनाया, ये देखिए काउडंग से ब्रिक्स बनाया मैंने, ये बहुत लाइट है और ये एंटी रेडिएशन भी है। और मैंने काउडंग से सेप प्रोडक्ट बनाया सर, सोप इज वन ऑफ, ये हम सोप भी बनाते हैं इससे। और हमने नेकलेस, इयररिंग वो सब भी बनाया सर, ब्रेसलेस। तो अभी मैं रेडिएशन प्रूफ के लिए, एंटी रेडिएशन प्रूफ के लिए हमको वो डिवाइस चाहिए, तो अभी मेरा नेगोशिएशन चल रहा है किसी कंपनी से। तो ये है सर, कुछ हम ये जंगल में रह के हम जंगल का रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके और बहुत इनोवेटिव क्रिएटिविटी लाना चाहता है। तो उसके लिए आपसे कुछ टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाहिए। और जैसा हमने आपको अभी बोला है मशरूम, सब लोग मशरूम चाहिए, मशरूम स्पॉन नहीं मिलता है, लेकिन मैं ऐसा बिलीव करता हूँ सर कि इंस्टेड ऑफ ये बाहर का जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसमें मार्केट कंपटीशन है और उसमें इतना जैसा आप ओस्टर का बात करते हैं, ओस्टर का किलो कितना है 220-30 और 10 रुपया 110 रुपया भी है असम में, ऐसा करके पर केजी बेचता है। लेकिन आप जैसा गेनोड्रोमा, ऋषि मशरूम जो लोकली अबंडेंट है, मतलब एक्सोटिक है आइटम है और इंटरनेशनल मार्केट भी है इसका, और इसका किलो आपका 5-6-1000 तक आता है अगर उसको ड्राई फॉर्म में लिया जाए। तो वो हमारे फार्म में उगता है, तो उसको हमने चाहे कि हम कल्चर करेगा ताकि थ्रू आउट द ईयर ये चल सके। और अगर वो बाजार में फ्रेश में नहीं भी बेचता है तो हम वैल्यू एडिशन करेगा इस प्रोडक्ट का साथ, इसमें डाल देगा और इंटरनेशनल मार्केट है इसका। तो मैं चाहूंगी कि जैसा बरुआ सर हम दोनों ने कल्चर किया एंड इट वाज सक्सेसफुल, लेकिन हमने उसको फार्म लेवल तक अभी तक लाया नहीं है, अभी लाने का अटेम्प्ट है। उसमें आप लोग जो कुछ हमारे लिए नीडफुल जरूरत होगा आप लोग टाइमली इंटरवेंशन कीजिएगा, ये मेरे दरखास्त है। Okay. Thank you, Titu madam. And that was we heard from her, as Dr. Chandan had said, a truly multi-faceted personality, an entrepreneur, an innovator, a change maker, a change leader. So she requested for a few things. She said was that a testing facility for her products be created there. Maybe this is
long-term program possibly, and also requested for periodically giving her technology exposure. So Yes, sir. there, and then also the point that she made was that there are a lot of abundant local resources available, and she also has ideas. So how we can join hands with her to for developing products or yes, and so on. And lastly, she did mention about an enterprise in Bangalore, NSFD or something, which I did not understand well, which I'm sure, but Dr. Chandan would have identified with it, and I'm sure would take forward. So in addition to Titu Yokaji, we also had the group Akila, the changemaker Akila, joining us from Pondicherry, who told us how the M.S. Swaminathan Research Foundation and INCOIS have helped them enormously, the fishing community there enormously, and how the role that she has been playing in disseminating information with regard to not only fishing, or also with regard to the safety of the people there when they, particularly during the hazardous times like tsunami and storms and others, and how she has been disseminating information and also training the community around her on aspects related to fishing. And we began with Mr. Gopal Singh, who we heard the change that he could influence in bringing a large group, about 110 people together, and again doing multiple things, right from beehive keeping to marketing products, taking the local products and selling it with the help of HESCO. So this was a really exciting session, which at least I enjoyed, and you have given us excellent inputs, which I'm sure will go a long way into many of the policies that we make, and also will keep these things at the back of our minds when we as scientific institutions connect with the community and the change makers. With that, we come to the end of session 2, and thank you all so very much. बहुत शुक्रिया सबको, और मैं अब माइक वापस डॉक्टर देवप्रिया दत्ता को दे रहा हूँ. Thank you, Dr. Devapriya Datta.